मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की वो आवाज खामोश हो गई जिसके दीवानों की कोई कमी नहीं थी, जिनके चाहने वालों की, जिनके फैंस की कोई कमी नहीं थी। आज हम आपको सुशांत सिंह राजपूत की वही आवाज सुनाने जा रहे हैं। जी न्यूज के पास इसी साल जनवरी का एक ऑडियो क्लिप है जिसमें सुशांत, रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती बैठकर सुशांत के फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। सुशांत इसमें एक ट्रस्ट बनाने के बारे में बात करते हैं। सुशांत अपने भविष्य को लेकर बात करते हैं और साथ ही सुशांत अपने रिटायरमेंट प्लान्स पर भी बात करते हैं। इस ऑडियो में सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिया चक्रवर्ती, रिया के पिता यानी कि इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनके भाई यानी शौविक चक्रवर्ती और श्रुति मोदी, ये सब इस ऑडियो में है। इस ऑडियो को सुनकर यही लग रहा है कि सुशांत ने आगे की प्लानिंग के लिए इन लोगों को बुलाया, इनसे बात की। ऑडियो में सुशांत बॉलीवुड छोड़ने, अपने रिटायरमेंट, अपनी बीमारी की बात करते हैं। रिया और इंद्रजीत चक्रवर्ती भी अपनी बात रखते हैं और सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं सुशांत सिंह राजपूत का वो ऑडियो जिसमें वो रिया के परिवार के साथ बैठकर अपने रिटायरमेंट की, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। How should we just save all the money, do it in a way that I can... We talked about a worst case scenario yesterday and yes. that was a worst case thing that we discussed. Yeah, because here I'm fighting my mind, so Yeah. that's probably the worst case So the worst case I can ever see. Which generally happens when we do worst case cases is having a private trust set up and to take care of the individual and ensure that all financial decisions are with a pool of people in terms of a trustees who actually decide. Right. And they have a parameter as you'll guide us in that. So how do we go Isn't that about an this? extreme? As I said, that's a worst case scenario, I right? don't think we're there yet. I think we're... Yeah, he had this insistence yesterday. Trust me. There's a word of trust here. No, I you've not seen worst. I just want to know how this trust thing functions. I have no idea. I'm a layman. Right. So you're creating a child. You're giving birth to an entity in which there will be set rules and regulations and which will be defined that this is how the trust will function. And it's a private trust because it's for the benefit of a certain set of people. And then the money is pooled. Yeah, so to put it simply, in a trust, there are three parties, okay? One is the settlor, the person who brings in something into the trust, right? Because the trust needs to have some assets that uske liye to humne trust create kiya hai, correct? Absolutely. So, let's say I'm the settlor. For example, I bring in X amount of, say, money or property or whatever into the trust, okay? Then comes the trustees, the persons who are responsible to deal with whatever I have brought into the trust. So let's say that Riya and Shruti are the trustees, okay? And then the third party is the beneficiary. Who is the beneficiary of the trust? Say in this case it will be him, right? Now the law demands that trustees can only act in a fiduciary position, means in a position of trust. So they have been put in charge that, okay, this is the asset that the settler brought in. You have to just administer this. It's not a transfer of ownership, okay? So the trust doesn't become the trustees don't become the owners, right? They are only like guardians or gatekeepers, or, you know, they're watching a certain property and they have to make sure that they use the assets, whether it's money, whether it's property, in a manner that is always in the highest and best interest of the beneficiary. So, One doubt, trusts work. who's the owner of the trust? That's the thing. There is no. The trust is the owner of itself. It's like a company. That's already in place. Move from city To a smaller, yeah, you have probably have that place. either their place or Something else that- something like that. Or like there's a thought that Goa maybe, but that suggested that be in Patna for some time, see that, then first see Goa. Give it like 1 or 2 months before we finally decide that. But overall, Yeah, he on the wants one to hand, feel if you're having this safeguarded. conversation to be conscious of finances, then let's not add to that also, right? इस ऑडियो में क्या बातचीत हो रही है, इससे हमें सुशांत केस को समझने में क्या मदद मिल सकती है, इससे ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता अंकुर हमारे साथ हैं। अंकुर, इस ऑडियो में जो हमें बातें सुनाई देती हैं उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग की बात है, ट्रस्ट बनाने की बात है, पैसे की मैनेजमेंट की बात है। इस ऑडियो से सुशांत की मानसिक स्थिति, रिया का क्या कंट्रोल था, परिवार का क्या कंट्रोल था, क्या समझ आता है?
विशाल, आपको समझना होगा, अगर मान लीजिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर मैं पैसे कमाता हूं या कोई भी सामान्य आदमी पैसे कमाता है तो वो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग अपने हिसाब से करता है। लेकिन यहाँ पर सुशांत सिंह के पैसे के लिए, सुशांत सिंह के भविष्य के लिए जो प्लानिंग कर रहा था वो अकेले सुशांत सिंह नहीं कर रहे थे, उनका रोल बहुत लिमिटेड था। उस पर जो पूरा कंट्रोल था वो रिया का है। कई बातचीत के इसमें अलग अलग अंश हैं। एक जगह है जहाँ पे ट्रस्ट बनाने की बात हो रही है, उस ट्रस्ट का पैसे से कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ये बात हो रही है। उससे हर महीने का रिटर्न कितना आएगा वो बता रहे हैं, कुछ 5 लाख का रिटर्न टैक्स वैक्स कट के आ जाएगा। एक ये बात हो रही है। दूसरा बात हो रही है कि पावना लेक के पास किस तरह से प्रॉपर्टी जो हो उसको किस पर एकड़ के हिसाब से कितने लाख रुपए में खरीदा जा सकता है जिससे आगे जाके फायदा होगा। इसी बात को लेकर एडवर्टीजमेंट को लेकर कुछ ब्रांड्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट को लेकर बात हो रही है। एक लंबा दौर है लेकिन उसमें अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग्स के ऊपर बात हो रही है। लेकिन एक चीज़ कॉमन है कि उसमें पूरे कन्वर्सेशन में ये तकरीबन 20 मिनट से लेकर आधे घंटे के बीच का कन्वर्सेशन है और रिया चक्रवर्ती का जो डोमिनेंस है वो पूरे इस ऑडियो क्लिप में आपको निकल के आएगा। हमारे दर्शकों को हम आगे भी इसकी पूरी बातचीत सुनाने की कोशिश करेंगे। अंकुर, क्या इससे ये समझ में आता है कि रिया को सुशांत का पैसा कहां है, कितना है, ये सारी जानकारी थी? भविष्य में पैसे को लेकर कहां इन्वेस्टमेंट होगा ये भी सब कुछ कहीं ना कहीं वो तय कर रही थी, क्या ये पता चलता है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विशाल। वो यही बात हो रहा है कि सुशांत सिंह अपनी मेहनत से, अपनी गाड़ी कमाई से पैसा, कमाया हुआ पैसा कितने साल के लिए कौन सी चीज़ में किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे ये सुशांत सिंह के अकेले फोटे में नहीं था। इसके लिए बाकायदा रिया जो थी वो बैठी हुई थी, वो हामी भरती थी तो बात आगे होती थी। आपने इसका एक अंश का एक हिस्सा ये भी है जब कुछ ब्रांड्स हैं उनके लिए एडवर्टीजमेंट करने की बात आती है तो रिया वो डेट्स को डोमिनेट कर रही हैं कि कौन सी डेट पर जाकर कितने घंटे के लिए जो सुशांत हैं वो अपना टाइम दे पाएंगे शूट के हिसाब से। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं इस पूरे आधे घंटे के, लगभग आधे घंटे का विजुअल ये ऑडियो है। जब ये पूरा सुनेंगे दर्शक तो उनको समझ में आएगा कि जो बात परिवार लगातार कहता आया है वो ये चीज़ को पुख्ता करती हैं। अभी तक बात पर्सनल रिलेशनशिप की हो रही थी, अभी तक बात कंपनी में पार्टनरशिप को लेकर हो रही थी, अभी तक बात घरेलू झगड़ों की हो रही थी। पहली बार लोग इस पूरे कन्वर्सेशन से समझ पाएंगे कि कितना ज़्यादा मैनिपुलेशन और डोमिनेंस रिया का। ठीक है, ये तो बात रिया की हुई अंकुर, ये बात तो रिया की हुई। लेकिन इस ऑडियो से एक और बात सवाल पैदा होता है कि एक सितारा जो कि बॉलीवुड में इस वक्त अपने पीक पर है वो अचानक से अपने रिटायरमेंट के बारे में, बॉलीवुड से मोह भंग होने के बारे में, गोवा या फिर पावना जाकर वहीं रहने, वहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में क्यों सोच रहा है? रिटायरमेंट की बात क्यों दिमाग में आ रही है? अब देखिए, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो ऑडियो हम रिलीज कर रहे हैं, किया है, दर्शकों को सुना रहे हैं, ये जनवरी 2020 का है। जबकि सुशांत सिंह राजपूत के बीमार होने की खबर है उनके यूरोप टूर के टाइम पे आ गई थी जो कि सितंबर का था। और सितंबर, अक्टूबर और उसके बाद नवंबर, दिसंबर, नवंबर का काफ़ी टाइम वो यहाँ पे वाटर स्टोन पर भी आते हैं जो एक रिसोर्ट है, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल हीलर आता है जो उनको हीलिंग टच देता है। 2 दिन की उसकी पूरा कोर्स चलता है। तो जो तबीयत जो खराब होना, इसी के बीच में प्रियंका और रिया चक्रवर्ती के खराब रिश्ते, प्रियंका और सुशांत सिंह के बीच में लड़ाई की बातों का सामने आना, ऐसी तमाम चीज़ें हो रही थी, तमाम लॉयल स्टाफ का चला जाना, ये सब चीज़ें बता रही थी कि उनको हल्का अपना आगे का भविष्य भी दिखाई देने लगा था। ऐसा नहीं था कि फिल्में नहीं मिल रही थी, लेकिन आदमी जब इस तरह की पूरी सिचुएशन से निकलता है तो फिर वो अपना आगे तक का बुढ़ापा तक प्लान करने के लिए मजबूर हो जाता है। और वो यही बात थी, क्योंकि इस तरीके से उनके जो लॉयल स्टाफ को निकाला गया, उनको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया गया। यहाँ तक कि उनकी सिम भी निकालकर सैमुअल मिरांडा की लगा दी गई ताकि वो अपने घर वालों से, अपने बाहरी लोगों से, दोस्तों से ज़्यादा बात ना कर पाएँ। ऐसे में आदमी फिर इंटेलेक्चुअल होकर अपने आगे का भविष्य प्लान करने बैठता है। जाहिर तौर पर ये वो चीज़ थी कि तकरीबन 14 तारीख को ये उनकी डेथ हुई है और जनवरी का ये ऑडियो है। तकरीबन 5 से 6 महीने पहले से ही वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी सचेत हो गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। तो जो ऑडियो हमने आपको सुनवाया, इसमें रिया की आवाज़ है, इसमें श्रुति मोदी की आवाज़ है, इसमें इंद्रजीत की आवाज है। ये सारी प्लानिंग हो रही है सुशांत सिंह राजपूत के पैसे को लेकर, उनके रिटायरमेंट को लेकर। ट्रस्ट बनाया जाना चाहिए या नहीं बनाया जाना चाहिए, कहां पर पैसा इन्वेस्ट होना चाहिए, ये सब कुछ इस ऑडियो में है। और अब आपको सुनवाते हैं सुशांत सिंह राजपूत के आखिरी 7 दिनों की कहानी क्या है। सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को बताया है कि 8 जून के बाद से
सुशांत भावनात्मक रूप से कितने कमजोर हो गए थे, लेकिन 7 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सीबीआई को दिए सिद्धार्थ पिठानी के वो बयान हम आपको बताते हैं जिनसे पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी कि 8 जून के बाद घर में क्या हुआ और 7 दिनों की उन तारीखों ने कैसे सुशांत की जान ले ली। सिद्धार्थ पिठानी ने रिया चक्रवर्ती पर 8 हार्ड डिस्क का डेटा डिलीट करने का आरोप लगाया है। डेटा डिलीट करने के बाद ही रिया घर से निकली, तो क्या 8 जून को गुनाहों के सबूत मिटा दिए गए? रिया ने पूरी तैयारी के साथ घर छोड़ा। सवालों के जवाब जानने से पहले आप ये जानिए कि 8 जून से 14 जून के बीच सुशांत के घर में क्या क्या हुआ और सिद्धार्थ ने सीबीआई को क्या कहानी बताई। 9 जून 2020 सिद्धार्थ ने बताया कि दिशा की आत्महत्या की खबर ने सुशांत को बेचैन कर दिया। सुशांत ने उस रात सिद्धार्थ को बेडरूम में साथ सोने के लिए कहा और दिशा की मौत से जुड़ी हर जानकारी देने के लिए कहा। सवाल यह कि क्या दिशा की मौत से सुशांत घबराए थे या दिशा की मौत की वजह के बारे में सुशांत को कुछ ऐसा पता था कि वह अचानक बेचैन हो गए। 10 जून 2020 10 जून को सुशांत बेहद तनाव में रहे और अपनी बहन से बात करके अचानक रोने लगे। 11 जून 2020 सुशांत की बहन मीतू सुशांत को सबके साथ घुलने मिलने के लिए कह रही थी, लेकिन सुशांत ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। सुशांत उस दिन काफी उदास थे। 12 जून 2020 सिद्धार्थ ने बताया कि 12 जून को मीतू को अपनी बेटी की याद आई और वो वापस अपने गोरेगांव वाले घर चली गई। 13 जून 2020 सिद्धार्थ के मुताबिक 13 जून को एक बिल भरने में सिद्धार्थ ने सुशांत की मदद की। उस रात 10 बजे यानी सुशांत के मरने से एक दिन पहले नीरज ने सुशांत को जूस दिया। सुशांत बिना खाना खाए सिर्फ जूस पीकर सो गए। 14 जून 2020 ये वो तारीख है जिस दिन सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कहा। सिद्धार्थ का कहना है कि सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच सिद्धार्थ हॉल में आए। करीब 10:30 बजे केशव ने उनसे कहा कि सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहे। ये बात उन्होंने दीपेश सावंत को बताई। दोनों ने जाकर दरवाजा खटखटाया, लेकिन सुशांत ने दरवाजा नहीं खोला। तभी सिद्धार्थ को सुशांत की बहन मीतू का फोन आया। उन्होंने कहा कि सुशांत को उन्होंने फोन किया, लेकिन सुशांत मीतू का फोन नहीं उठा रहे। तब सिद्धार्थ ने बहन को बताया कि सुशांत दरवाजा भी नहीं खोल रहे हैं। सिद्धार्थ के मुताबिक उसने मीतू को घर बुलाया और दीपेश को वॉचमैन से कहकर चाबी वाले को बुलाने के लिए कहा। वॉचमैन की मदद न करने पर उसने गूगल से रफीक चाबी वाले का नंबर निकालकर दोपहर 1:06 पर उसे फोन किया। रफीक के कहने पर सिद्धार्थ ने उसे लॉक का फोटो और घर का पता व्हाट्सएप पर भेजा। फिर मीतू को फोन कर चाबी वाले को बुलाने की जानकारी भी दी। दोपहर 1:20 पर रफीक अपने एक साथी के साथ सुशांत के घर पहुंचा। उसने लॉक देखकर चाबी नहीं बनने की बात कही, तो सिद्धार्थ ने उसे लॉक तोड़ने के लिए कहा। रफीक ने कुछ मिनटों में लॉक तोड़ा और सिद्धार्थ ने उसे 2000 रुपये देकर जाने के लिए कह दिया। सिद्धार्थ और दीपेश सावंत जब सुशांत के कमरे में पहुंचे तो उन्होंने वो देखा जिस पर आज भी कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। सुशांत हरे रंग के कपड़े से पंखे पर लटके हुए थे। सुशांत के पैर बेड के बगल में थे। तभी उसने मीतू को और 108 नंबर पर कॉल कर घटना की जानकारी दी। इसके तुरंत बाद सिद्धार्थ को चंडीगढ़ से सुशांत की बहन नीतू का कॉल आया। जानकारी मिलते ही नीतू सिंह ने फोन काट दिया। दोबारा फोन करके नीतू और उनके पति ओपी सिंह ने सिद्धार्थ को सुशांत को पंखे से उतारने के लिए कहा। इसके बाद नीरज चाकू लेकर आता है और दीपेश सावंत, सिद्धार्थ और नीरज मिलकर सुशांत के गले पर लगा कपड़ा काट देते हैं और सुशांत की बॉडी को बेड पर लेटा देते हैं। इसके बाद सुशांत की बहन मीतू सुशांत के घर पहुंचती हैं और पहला सवाल यही पूछती हैं कि क्या सुशांत जिंदा है, और उन्होंने पाया कि सुशांत की मौत हो चुकी है। वैसे सिद्धार्थ की इस कहानी पर यकीन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि 8 जून को लेकर सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती के बयान मिलते जुलते हैं। वहीं सिद्धार्थ, दीपेश और नीरज के बयानों में अंतर है। सच क्या है, किसने सुशांत की जान ली, ये गुत्थी बयानों के अंतर के कारण अब और ज्यादा उलझ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सीबीआई जांच हो रही है। आज दूसरा दिन है जब रिया से पूछताछ कर रही है सीबीआई की टीम, और हमने आपसे पूछा था कि आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं इस मामले में, सच क्या है। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं
कि लोग इस पर क्या कह रहे हैं, उनके मुताबिक सुशांत केस में क्या हुआ और क्या छुपाया जा रहा है। बिल्कुल, वो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे थे, इसलिए इंटरव्यू करा उन्होंने। बैन होगा वो। अगर होना भी चाहिए था तो कुछ पर्सनल चीज़ें हैं जो शायद उनको डिस्कस नहीं करना चाहिए था। ओवरऑल चीज़ों पे बात करनी चाहिए थी कि क्या रीज़न हो सकता है सुसाइड का और क्या नहीं। उसके जो मेंटल हेल्थ है और जो उसकी फिजिकल हेल्थ है उसके ऊपर शायद उनको नहीं बोलना चाहिए था इस चीज़ के बारे में। नहीं जी, मेरे हिसाब से तो अभी नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इतना केस आगे बढ़ गया है कि उसमें सीबीआई जांच भी हो रहा है, तो इस टाइम तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि इंटरव्यू होना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं सुशांत की जो बहन है उन्होंने इस पर काफ़ी आपत्ति जताई है जी कि किसी इंसान पे जब इतने ब्लेम लगे हो, किसी न्यूज़ चैनल को उसका इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। पूरे देशवासियों पे काफ़ी बुरा मैसेज जाता है। हैशटैग माई टेक ऑन सुशांत पर आपने, दर्शकों ने राय दी है कि सुशांत की जो मीडिया कवरेज हो रही है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आपको इससे क्या समझ आ रहा है। हैशटैग माई टेक ऑन सुशांत, लोग क्या कहते हैं जरा देखिए। ट्विटर के माध्यम से उन्होंने अपनी राय जाहिर की है। सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई। अगला ट्वीट देखिए, ये पूरी तरह हत्या का मामला है। ये आपकी राय है। जो दर्शक सोशल मीडिया के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं, हैशटैग माई टेक ऑन सुशांत पर अपनी राय दे रहे हैं, सुशांत की मीडिया कवरेज पर राय दे रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले को उन्होंने जितना समझा उसके मुताबिक क्या हो सकता है वो ये बता रहे हैं। मीडिया ना होता तो मुंबई पुलिस ने इसे आत्महत्या साबित कर दिया होता। इसके अलावा एक और यूजर देखिए क्या कह रहे हैं, मर्डर है, हत्या है। सुशांत की मौत को मानते हैं कि मर्डर है, ये हत्या है। साथ ही एक और ट्विटर यूजर ने क्या लिखा है, सुशांत के मर्डर में नेता, बॉलीवुड, पुलिस और अंडरवर्ल्ड शामिल है। तो हैशटैग माई टेक ऑन सुशांत पर आप भी अपनी राय जाहिर कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि सुशांत की मीडिया कवरेज पर आपकी राय क्या है, आपको क्या लगता है क्या हुआ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.